हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करकान एजुकेशन। मैं आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वीडियो सीरीज में आज लेकर आया हूं डायनेमिक्स ऑफ मशीन का टॉपिक, फ्रिक्शनल टॉर्क इन पिवोट एंड कॉलर बियरिंग का लेक्चर नंबर 1। तो यदि आप वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दैट इज फ्रिक्शनल टॉर्क इन पिवोट एंड कॉलर बेयरिंग। तो हम उसके पहले ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है। दैट मीन्स व्हाट इज द फ्रिक्शन। तो फर्स्ट डिफिनेशन ऑफ द फ्रिक्शन, दैट मीन्स friction is a resistance force that opposes the relative motion at two contacting surfaces. Here given as one example like this one. One object is this one, another object is this one, and this one is sliding over to each other. That means here pushing force applied P Newton. Then this one moves towards right direction. That means here at the interface a force resists. That resistance force is called friction force. Here similarly in rotating on a wheel on the surface, that means here push that wheel on towards clockwise direction. Then here that is slippage. That means here a resisting force is acting on that one, so that moves forward direction. जब क्या है, ये this one is moving backward direction, then this disc will be rotate to the right clockwise direction. Here also the example of the violin, that is also frictionally induced vibration. So that type of phenomena is called friction. So there are various type of friction. Some at reduces to the force of friction or increase the friction. So in that case, in case of general bearing, that is focus on this chapter, or either lathe, where the power transmitted is reduced due to friction. So that means friction is somewhere reduced at the power, or friction is somewhere advantages for the different type of phenomena. So that first one is the type of the friction. There are three type of friction: dry friction, skin or greasy friction or boundary, and that is film friction. So dry friction, that means there are sliding motion to each other. Here this one is the surface and this one is another object. Then this one is moves right direction at that surface, that means contacting of two solid surfaces, that is called solid friction. When there is just this one is called rolling friction. This one is dryness, so this one is called rolling friction. Where some lubrication, that is in case of general bearing. In case of bearing you have to provide, आप क्या करते हैं उसमें lubrication provide करते हैं, that is called grease, है ना. तो that is where two surfaces contact, have a minute thin layer, that is minute thin layer of the lubrication between them, that is called a skin or greasy friction. And then film friction, that is called viscous friction. Then law of the, here also classification is given as friction is two type: dry friction and viscous. ड्राई में भी क्या होगी, स्लाइडिंग हो जाते हैं, एंड दिस वन इज द रोलिंग फ्रिक्शन. एंड विस्कस में आपको क्या होगी, दैट इज जनरल बियरिंग. अब ये आपको बियरिंग रहता है, ये केजिंग रहता है, इसमें आपको लुब्रिकेशन फुलफिल रहती है. सो दिस वन इज द रिड्यूस दैट द heat transmitted
एंड हेयर द रोलिंग दैट इज कॉन्टेक्ट होता है. देन स्लाइडिंग में आपको रफनेस, एधेजन, डिफॉर्मेशन, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्रिक्शन लॉ. Then laws of the friction. According to Amonton Coulombs, they are classified. First one is stated that coefficient of friction is independent of the area of contact. Here given as figure this one, this one, this one, this one, this one. There are different type of here. Here area of contact is more, here lesser, here that one is the more. There are more different type of area, but always all type of the contacting surfaces have same equal amount of the frictional force. That means coefficient of friction is dependent of the contacting surface. Then second law, friction force is directly proportional to the applied normal load. जिसपे हम क्या है, इस पे जितना भी न्यूटन हम अप्लाई करेंगे, है ना, दैट इज यदि हम पुल कर रहे हैं 10 न्यूटन से, यदि 20 से करेंगे तो डिफरेंट हो जाएगी, 30 से करेंगे तो डिफरेंट हो जाएगी. दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड नॉर्मल फोर्स. ओके. देन काइनेटिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्लाइडिंग वेलोसिटी. देखिए यहाँ पे क्या है, जब हम इसको पुश कर रहे हैं, इनिशियली पुश कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये क्या स्टैटिक फोर्स हमें बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, अप टू दैट थ्रेशोल्ड वैल्यू दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. अब यहां से जैसे ये बॉडी मूव कर जाएगी तो सडनली हमारा क्या होता है, फोर्स ड्रॉप हो जाता है. और फोर्स ड्रॉप होने के बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट फोर्स से आप इसको पुश करेंगे, देन ये आपको आगे बढ़ते जाएगी. दैट मीन्स काइनेटिक. ये क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन. यहीं पे आपको रोलिंग रहेगी तो रोलिंग फ्रिक्शन. दैट मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेसर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. दैट मीन्स इसमें आपको क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, हमारा वेलोसिटी से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. आप कितना भी वेलोसिटी से आप खींच रहे हैं तो आपका उसके दैट इज लॉ ऑफ द फ्रिक्शन. तो यदि आपको एक एग्जाम में आएगा कि एक्सप्लेन द फ्रिक्शन, तो पहले आप क्या करेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, then laws of the friction. Okay. Then here topic is given as frictional torque in pivot and collar. तो देखिए आप रियल एग्जांपल से समझिए कि आपका पिवोट क्या होता है, पिवोट बेयरिंग क्या होता है एंड कॉलर बेयरिंग क्या होता है. पिवोट बेयरिंग में आपको देखिए क्या है, दैट इज बॉल बेयरिंग. ये रियली आपको एग्जांपल है, ये बॉल बेयरिंग है, तो ये चारों तरफ से आपको लगा है. और दिस वन इज द शाफ्ट. ये आपका क्या है, दैट इज शाफ्ट. और ये आपको क्या है, बियरिंग है ना. तो यहां पे देखिए ये शेप जो है क्या है, दैट इज कोनिकल शेप. अब ये कोनिकल शेप है तो इसका एंगल कितना है, दैट इज 60 डिग्री. तो ये क्या हो गया, कोनिकल पिवोट. एंड पिवोट किसको बोलेंगे, जिसमें हमारा यहां देखिए हमने डिफिनेशन भी लिखा है, व्हेन द एक्सियल लोड इज टेकन एट द एंड ऑफ द शाफ्ट व्हिच इज इंसर्टेड इन ए रेसेस टू बियर द थ्रस्ट. यहीं पे आपका जब ये लोड इस पे लगेगा तो यहीं पे एंड ऑफ द शाफ्ट, यहीं पे आपका जो अंत में है एंड ऑफ द शाफ्ट पे ही तो आपका लोडिंग आपको कंडीशन लग रही है. तो इन दैट केस इज कॉल्ड पिवोट बेयरिंग. तो ये क्या हो गया, कोनिकल शेप की हो गई. अब यदि हम फ्लैट की बात करें तो आपको देखिए ये आपको बॉल बेयरिंग है ना, और इसके ऊपर ये क्या होगा, इस तरह से माउंट हो जाएगी. तो ये आपको क्या हो गया, दैट इज फ्लैट. ये आपको देखिए फ्लैट पिवोट है, इसी पे तो आपको क्या पूरा शाफ्ट का लोड रहेगा. तो दैट इज फ्लैट पिवोट बेयरिंग. तो इसीलिए आप देखिए इस तरह से आप जब फिगर बनाते हैं तो ये आपका क्या है, ये फ्लैट है, पिवोट पार्ट है, और ये आपका शाफ्ट रहता है, ये बियरिंग का पार्ट रहता है. ये देखिए आपको बियरिंग वाला पार्ट है, ये आपका शाफ्ट है जो कोनिकल है, ये आपका इसमें ट्रंकेटेड पार्ट है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ शेप की आपको रहेगी. तो बट हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि फ्रिक्शनल टॉर्क है ना, फ्रिक्शनल टॉर्क कितना होगा, है ना. तो पहले उससे पहले हम बात करते हैं कि पिवोट बेयरिंग होता क्या है. तो पिवोट बेयरिंग में आपको क्या होता है, व्हेन द एक्सियल लोड, जो भी हम अप्लाइड कर रहे हैं, एक्सियल लोड अप्लाई कर रहे हैं, टेकन एट द एंड ऑफ द शाफ्ट, है ना, जो एंड ऑफ द शाफ्ट जो कि हमारा बियरिंग में थ्रस्ट रेसिस्ट करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, फुट स्टेप बियरिंग भी बोलते हैं.
अब ये देखिए कॉलर, तो कॉलर में आपको देखिए, कॉलर में क्या है, ये आपको बियरिंग रहता है, यहां से आपको एक कैप कॉलर लगाया रहता है ना, और उस पे आपको क्या है, कुछ लोड रहती है। जैसे आप देखिए ये बियरिंग है, ये बियरिंग का ये रोलर पार्ट है अंदर ये, है ना, और ये बाहर से देखिए, ये बाहर से ये देखिए एक पार्ट लगाया गया, दैट इज कॉलर। उसको क्या है कि रेसेस से उससे बाहर नहीं निकले, तो ये आपको क्या है, दैट इज कॉलर। तो यहाँ पे देखिए ये आपको कॉलर हो जाएगी। तो इस केस में यदि हम फ्रिक्शनल टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो कॉलर का एरिया आपको अलग आ जाएगा, क्योंकि आपका इसमें देखिए क्या है, जब इसको आप बात करेंगे ऊपर से, जब टॉप व्यू से देखेंगे, ये आपको क्या है, डब्ल्यू न्यूटन डब्ल्यू लग रही है। तो इस केस में आपको क्या होगा, ये आपका एक सर्कल बनते आएगी, दैट इज दिस वन, दैट मीन्स आपका इस तरह से कुछ ऊपर से दिखेगा, एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर एक छोटा सर्कल। तो ये आपको इस एरिया में जब हम बात करने जाएंगे तो आपको डिफरेंट अलग दिखेगी, कि आपका इनर पार्ट अलग होगा, आउटर पार्ट अलग होगा। तो कॉलर में आपको इनर और आउटर का कंसेप्ट आएगा। बट पिवोट में आप देखिए, पिवोट में आपको क्या है, इनर आउटर नहीं, ओनली सॉलिड है, दैट मींस आपका सेंटर टू, ये जो है आपका सेंटर टू, यहां से देखिए ये सेंटर लाइन से आपको मैक्सिमम आउटर पेरिफेरी तक आपका वेरिएशन होगी। तो ये आपको पिवोट बियरिंग एंड जनरल बियरिंग, कॉलर बियरिंग में डिफरेंस है। तो चलिए हम बात करेंगे कि जो फ्रिक्शनल टॉर्क हम जब कैलकुलेट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग, है ना, जब भी हम बात करेंगे कि फ्रिक्शन टॉर्क कितना होगा, तो इसमें हम दो थ्योरी यूज करते हैं, एक यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी एंड एक यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी कहां पे यूज करेंगे, जब हमारा न्यू बियरिंग है, एकदम न्यू, जब जस्ट अभी मैन्युफैक्चर होके आई है, तो उसमें कोई बियर नहीं रहेंगे। तो उस केस में हम बात करेंगे कि हमारा जो प्रेशर है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट यदि आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यदि वो आपका यूज हो गया 200 घंटे 400 घंटे, तो उसमें क्या होंगे, एट द सरफेस एज रब्ड, सरफेस पे क्या रबिंग हो जाएगी, दैट मींस स्क्रैचेज आ जाएंगे। तो उसमें आपको क्या है, कहीं पे आपको यूनिफॉर्म प्रेशर नहीं लगेगी, जहां पे स्क्रैच आ गई दैट्स वहां से प्रेशर हो सकता है ज्यादा लगेगी या कम लगेगी, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन। तो उस केस में हम बात करेंगे कि नहीं, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में हम बात करेंगे कि नहीं, हमारा जो प्रेशर जो बियर भी है वो थ्रू आउट क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, तब हमारा जाकर कैलकुलेशन सिंपल होगा। तो आपका ये दो थ्योरी में हमें क्या करना है, फर्स्ट वन इज द प्रेशर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बियरिंग सरफेस। आप यहां पे देखिए ये जो बियरिंग सरफेस होगा उसके हम थ्रू आउट करेंगे। सेकेंड केस, बियर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बियरिंग सरफेस। तो इसमें देखिए व्हेन बियरिंग बिकम्स ओल्ड all parts of rubbing surface will not move with the same velocity because the velocity of rubbing surface increases with the distance from the axis of bearing. That means bear may be different at the different radius and that causes the different distribution of the pressure. तो हम उसका क्या है अलग से करेंगे। तो हम इसमें क्या है, दो केस में हम जब भी हम फ्रिक्शनल टॉर्क डेवलप करने की, फ्रिक्शनल टॉर्क का डेरिवेशन, फ्रिक्शनल टॉर्क कितना डेवलप हो रहा है इन पिवोट बियरिंग और आइदर कॉलर बियरिंग, तो उसमें हम दो केस कंसीडर करेंगे। फर्स्ट वन इज द कंसीडर एज यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी एंड सेकेंड केस इज द यूनिफॉर्म बियर थ्योरी। तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट वन इज द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी की, है ना। तो जिसमें हम देखिए हमने पहले क्या लिया है कि डेरिवेशन ऑफ फ्रिक्शनल टॉर्क इन पिवोट बियरिंग। अभी देखिए पिवोट बियरिंग का हमने क्या है सिंपल लिया, फ्लैट वाला पार्ट, नोट फॉर द कोनिकल। अभी हम कोनिकल की बात बाद में करेंगे, तो उसका डिफरेंट शेप होगी, तो उसके लिए अलग से आपको होगी। तो ये देखिए आपका शेप, यदि ये क्या है, ये शाफ्ट है और ये क्या है बियरिंग पार्ट है। तो इसका जब भी हम क्या है टॉप व्यू से देखेंगे तो ये आपको क्या है एक रेडियस सर्कल नजर आएगी। तो ये आपको क्या है, दैट इज सर्कल, दिस वन। एंड इसका रेडियस आपको क्या है, दैट इज, ये जो रेडियस आपको दिख रही है दैट इज कैपिटल आर। तो हमें इसी में क्या हो रहा है, यहां पे हम एज्यूम कर दिखा रहे हैं कि यहां पे क्या है, W जो है लोड ट्रांसमिटेड ऑन दी बेयरिंग सरफेस, जो हम अप्लाइड एक्सियल लोड लगा रहे हैं, है ना। और इसे आप इसको ये भी बोल सकते हैं दैट इज एक्सियल
लोड, है ना। एंड आर जो है हमारा, ये जो रेडियस है दैट इज द बियरिंग सरफेस रेडियस, यही पे तो बियर हो रहा है ना, ये आपका बियरिंग सरफेस है। दैट मीन्स बियर मीन्स ऐसा क्या करना, सहना, है ना। दैट मीन्स उसी पे आपका टोटल प्रेशर बियर हो रही है। और कितना प्रेशर से लग रहा है, तो हमने एज्यूम किया कि P इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर पर यूनिट एरिया ऑफ द बियरिंग सरफेस बिटवीन द रबिंग सरफेस। तो रबिंग सरफेस क्या है, ये आपका बॉल बियरिंग है, दैट इज, ये इसको आप क्या बोलेंगे, बॉल बियरिंग। और ये जो पार्ट है हमारा क्या है, दैट इज शाफ्ट, है ना। तो हम क्या करते हैं कि अब डायरेक्टली हम तो यहाँ पे क्या है कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेशर का वेरिएशन हो रहा है कि जैसे जैसे रेडियस चेंज होगी वैसे वैसे प्रेशर हमारा चेंज होगा। तो हम क्या किए कि एक एलिमेंटल रिंग, ये जो हमारा सर्कुलर है, तो एक सेंटर से कहीं पे एक डिस्टेंस आर पे क्या किए, एलिमेंटल रिंग ले लिए, है ना। दैट इज, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंटल रिंग। आपको ये देख रहे हैं ना, ये दिस वन इज द एलिमेंटल रिंग, जिसका रेडियस आर है और थिकनेस क्या है, डी आर है। तो जब ये थिकनेस डी आर है ना, तो हमें क्या निकालना है, एरिया, है ना। एरिया क्या होगा, तो ये क्या होगा, दैट इज अ स्मॉलर एरिया। तो देखिए ये जो रिंग है उसको यदि आप कट कर दीजिए, जैसे ये क्या है, दैट इज ओनियन, प्याज का जो स्लाइस है, और एक स्लाइस लीजिए और उसको कट करेंगे तो क्या होगा, आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए इस तरह से आपका ये कट करने के बाद आपको क्या है, इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये आपको क्या हो गया, लेंथ एंड टू इसका जो थिकनेस होगा, यही तो हमारा एरिया होगा। यदि ये एरिया ऑफ द एलिमेंट निकालना है तो लेंथ, अब ये लेंथ कितना हो जाएगा, तो देखिए ये आर डिस्टेंस पे था, तो हमारा इसका क्या होता है, सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर क्या हो गई, दैट इज लेंथ, और यहां से थिकनेस क्या है, दैट इज डी आर। तो यहां से देखिए हमने थिकनेस डी आर, तो इसलिए बियरिंग एरिया क्या हो गई, डी ए इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर। अंडरस्टैंड। अब यदि हमें एरिया निकल गया तो हम ये भी जानते हैं कि प्रेशर, है ना, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज लोड अपॉन एरिया। तो लोड हमारा क्या है, यहां पे यदि हम एक एलिमेंटल रिंग लिए हैं दैट इज डेल डब्ल्यू हो जाएगी, और एरिया क्या हो जाएगी, दैट इज डी ए। तो आप यहां से जब करेंगे कि डेल डब्ल्यू, तो डेल डब्ल्यू आपको क्या हो गई, दैट इज डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डी ए, और डी ए आप ऊपर से कैलकुलेट किए हैं, तो P इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। तो ये देखिए आपका क्या होगा, दैट इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू दी एक्टिंग टेंजेंशियली, क्योंकि आपका ये टेंजेंशियल ये रोटेट कर रहा है ना, आप ये शाफ्ट हमेशा ऑलवेज क्या है, रोटेट करेगा, तो फोर्स ऑलवेज क्या लगेगा, इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर, दैट मींस यहां से, सॉरी टेंजेंट, तो यहां से आपको इस तरह से फोर्स आपको लगते रहेगी। तो ये जो भी आपका फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स में आपको क्या है, फ्रिक्शन लग रही है, तो आपका यहां से क्या हो जाएगी फ्रिक्शनल फोर्स। अब क्या है, ये तो हमारा टोटल क्या है, लोड निकल गया, दैट इज लोड, और आइदर इसको क्या बोलेंगे, लोड, और आइदर इसको फोर्स, है ना। तो अब आप देखिए कि यहां पे फोर्स की जब हम बात करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स, तो म्यू इंटू एन अप्लाइड लोड, और म्यू जो है क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, अप्लाइड लोड क्या है, दैट इज डेल डब्ल्यू। तो यहां से डेल डब्ल्यू आपने रख लिया म्यू इंटू, तो डेल डब्ल्यू आपको कैलकुलेट होकर आ गई है 2 पाई आर इंटू डी आर। तो यहां से हमारा जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो आ जाएगी, है ना, 2 पाई आर इंटू म्यू इंटू पी इंटू डी आर। तो जब भी हम टॉर्क की बात करते हैं, दैट इज टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फ्रिक्शनल टॉर्क हमें, फ्रिक्शनल फोर्स हमें मिल गया है, तो यहां पे हम यदि बात करेंगे कि फ्रिक्शनल, है ना, फ्रिक्शनल टॉर्क, तो क्या हो जाएगी, दैट इज टी आर इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इनटू आर, दैट मींस एट ए डिस्टेंस आर पे, क्योंकि हम एक एलिमेंटल रिंग की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंटल रिंग आर पे कितना होगा, तो आप 2 पाई क्या हो जाएगी,
2 पाई म्यू इंटू पी इंटू आर है यहाँ पे, तो आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब ये नहीं यदि समझ में आया तो इसको देखिए क्या कर सकते हैं, इसको और यहां से लिखेंगे कि 2 पाई आर इंटू म्यू इंटू पी इंटू डी आर, और ये आपको टी आर आ गई। तो जब हमारा ये क्या निकल रहा है, दैट इज फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन द एलिमेंटल रिंग। अभी रिंग पे हमें निकली है, तो हमें क्या है, पूरा कैलकुलेट करना है। जब हमें पूरा कैलकुलेट करना है तो उस तरह से देखिए, जब हमें क्या है, टोटल कैलकुलेट करना है, यहां पे आपको सेम चीज कि आपको यूनिफॉर्म प्रेशर है, तो प्रेशर क्या होगा, हमने अभी बताया ना, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो और आइदर इसको क्या बोल सकते हैं, लोड। तो लोड कितना लग रहा है यार, फोर्स W, एरिया क्या हो जाएगा, यही तो सरकमफ्रेंस एरिया होगा, दैट इज ये एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर, और ये डी आर हमें निकल गई है। तो ये टोटल जो एलिमेंटल रिंग पे ऑलरेडी हमने क्या है, ये कैलकुलेट कर लिया है। जब ये कैलकुलेट कर लिए हैं तो हमारा इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम इसको क्या करेंगे, टी आर इक्वल टू 2 पाई इंटू म्यू इंटू पी इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग, है ना, इंटीग्रेटिंग एवब इक्वेशन फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम लिमिट 0 टू आर, है ना, 0 टू आर। तो क्या आ जाएगा, टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क दैट इज T इज इक्वल टू, है ना, टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क T इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू आर 2 पाई म्यू इंटू पी इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर, है ना। तो चलिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। दैट मीन्स यहां पे क्या था, T इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कैपिटल आर 2 पाई म्यू इंटू पी इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो देखिए 2 पाई म्यू एंड पी, दीज आर द कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट है तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। तो 2 पाई इंटू म्यू इंटू पी इंटीग्रेट 0 टू आर, दैट इज आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो अब आप इंटीग्रेशन जान रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ आर टू द पावर एन इंटू डी एन है, तो इसको क्या होगा, आर टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। तो उसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करके क्या आ जाएगी, 2 पाई म्यू इंटू पी, अब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 0 से कहां से आर, तो आर क्यू, क्योंकि 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 3, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस लिमिट को इसके अंदर पुट करेंगे। तो 2 पाई म्यू इंटू पी इंटू, है ना, आर क्यूब माइनस 0 टू द पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका जो आ जाएगा टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क, है ना, टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क दैट इज T इक्वल टू 2 पाई म्यू इंटू पी इंटू आर क्यूब बाई 3। अब हमें क्या है, आ गई। तो यहां से हम क्या करेंगे कि अभी देखिए P इक्वल टू, है ना, P इक्वल टू क्या आया था, W अपॉन पाई आर स्क्वायर, यही तो है यूनिफॉर्म प्रेशर का। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो दैट इज ये क्या हो जाएगी, 2/3 पाई इंटू म्यू इंटू पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, W अपॉन पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब। तो देखिए यहां से
पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगी, आर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट मीन्स यहां से आ जाएगी 2/3 म्यू इंटू डब्लू इंटू आर। तो ये क्या हो गया, टॉर्क, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, टॉर्क निकल गया। तो ये क्या निकला, दैट इज द फ्रिक्शनल टॉर्क, है ना। इसको क्या बोलेंगे, दैट इज द फ्रिक्शनल, सॉरी, दैट मीन्स हमारा क्या आ गया था, यहां पे आपको जस्ट फ्रिक्शनल टॉर्क दैट इज T इक्वल टू 2/3 इंटू म्यू, है ना, इंटू W इंटू आर। तो ये किस केस में, आपको पिवोट के केस में, जब हमारा क्या है, यूनिफॉर्म प्रेशर, है ना। सेकेंड आपको क्या है इसमें, व्हेन शाफ्ट रोटेट एट ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, देन पावर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, तो P इक्वल टू T इंटू ओमेगा। तो T हमारा क्या आ गया है, दैट इज 2/3 इंटू म्यू इंटू डब्लू इंटू आर इंटू दैट इज ओमेगा। तो आपका यहां से ये भी लिख सकते हैं कि ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाती है, 2πn/60, दैट इज 2/3 इंटू म्यू इंटू डब्लू इंटू आर इंटू 2πn/60। तो ये हो गया हमारा पावर लॉस, है ना। और इसे हम पावर लॉस को क्या लिख सकते हैं कि P इक्वल टू 2πn/T डिवाइडेड बाई 60। ओके, तो ये इस तरह से हमने क्या है डिराइव किया कि आपका फ्रिक्शनल टॉर्क इन, है ना, फ्रिक्शनल टॉर्क इन पिवोट बेयरिंग कितना होता है, दैट इज 2/3 म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर व्हेन यूनिफॉर्म प्रेशर। ओके, तो इस तरह से हमने किए। तो यदि आपको यहां तक कोई भी दिक्कत है तो आप वीडियो के जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डेरिवेशन ऑफ फ्रिक्शनल टॉर्क इन कॉलर बियरिंग। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।